I had never heard of the term autism. I'm an educated person. That time also I had finished my MPhil, I was teaching in Delhi University, but I had not heard the term autism. Being in Delhi. My child may be disabled, but I as a parent is 200 times disabled. I've been saying this. As a mother, I had to leave a career. I had to leave all my dreams. यहाँ ऑटिज्म वाला भी बच्चा जो है वो 3 साल का बच्चा हो तो भी माँ का बाल खींचता है, 20 साल का बच्चा हो तो भी माँ ही को मारता है या माँ ही को काटता है. वो घर में बैठा हुआ, उसकी बिहेवियर बढ़ती गई और वो रोना चिल्लाना, जंप करना, मारना पीटना शुरू हो गया. तो उसको हम लोग चेयर में बांध के रखते थे. क्या करें, मार खाएं, दांत काट लेता था. मेरे सेंटर में एक मदर आई थी, शी वॉज अ डिवोर्सी. वो उसको मैंने बोला कि 15 दिन आप रहो, इस बच्चे को हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज उसने नहीं बताया था कि उसको फिट्स होता है. और वो इतना पतला बच्चा था, इतना कमजोर बच्चा था. उसी दिन वो नर्वसनेस से उसको फिट्स हो गया. हम डर गए, हमारे स्टाफ डर गए, समझ गए. तो हमने बोला 15 दिन रहिए, मैं एक्लेमेटाइज हो जाएगा, बच्चे का सारा रिक्वायरमेंट हमारी स्टाफ समझ जाएगी, फिर हम इसको ले लेंगे. She said no, and next morning she left with her mother and with the child. Now, after 1 month or so, her brother calls me. She says, "My sister has committed suicide." It's very sad. She in the morning got up, went to the in Coimbatore. कोई लेक है, वहाँ जाके रिवर है या लेक कुछ है, वहाँ जाके वो डुबकी मार के मर. What is a carer's world? कैरियर का लाइफ क्या होता है कि उसे जरा भी टाइम नहीं होता है कि खाना खा सके. उसका पहला फोकस होता है जिसके लिए मैं हूँ, जिसके चारों तरफ मेरा लाइफ घूमता है. उसका पहला, वो रोया तो हम रोए, वो उठा तो हम उठे, वो बैठेगा तो हम शायद बैठ पाए. तो ये हालत होता है ऑटिज्म के मदर्स का. मैं जितना हो सके मैं करती हूँ. मैं उनको निमांस ले जाती हूँ. मैं खुद भी कई बार पेरेंट्स के साथ गई हूँ जिसमें डिफिकल्ट बच्चा रहा है. मैं अपनी गाड़ी में बिठा के भी लेके जाती हूँ. मैं लोगों को कनेक्ट कराती हूँ. मैं नेशनल ट्रस्ट में भी लोगों को कनेक्ट कराती हूँ. मैं कभी भी सोचती हूँ कि ऑटिज्म से लेके कोई भी अगर मेरे पास आए और मैं उसका इतना भी तकलीफ दूर कर सकूंगी तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ. ये मेरा नेचर है. What is the typical time when the speech के ऊपर what is the age? एक एज रेंज होगा ना कि इस वाले टाइम से लेके इस टाइम तक अगर स्पीच पे काम कर लिया देन बच्चा निकल जाएगा. जो स्पीच का जो टाइम है, मैं समझती हूँ एक तो आप सिखाना ऑटिज्म वाले बच्चों को लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी पर से जो कि बहुत टेक्निकल इशू है, क्लिनिकल होता है, वहाँ पे स्पीच थेरेपी का मशीन्स लेके करते हैं, उसको बच्चों को 0 to 9-10 इयर्स में जरूर होना चाहिए. Today I am sitting with one of the legends who has created a solid impact in the space of autism. She is also one of the key founding members of the name ASI. ASI's full form is also known as Autism Society of India, which was founded back in 2006. And today I have the pleasure to interview and get someone who is a stalwart in this field and empowered many parents, thousands, lakhs of parents who have children on the spectrum. And she has helped them in ways you can't even imagine. So today here, I'm going to have small chit chat with her. And thank you so much for joining me here. So what was the thought behind Autism Society of India? Why did this organization, what was the motive behind this to be formed? See, then when we talk about 2006 and before that, there was autism was not recognized in India. People were not knowing what was autism. Only central places like Delhi, Mumbai and main cities where a little bit work had started happening, and the doctors community, pediatrician community, even the doctors community did not understand autism. I see. And The doctors, really, what was their, what did they say? so what most of the doctors would tell us, This was in 2006. Doctors were still not recognizing it. no, they were not able to. Only pediatrician and neuropediatrician and psychiatrists be able to recognize autism. जनरल मेडिसिन, जनरल प्रैक्टिशनर को नहीं समझ आ रहा था. वो लोग बोलते थे हो सकता है लेट है. ज्यादातर पेरेंट्स से जब तुम बात करोगे वो सब बताएंगे कि वो लोग गए थे पीडियाट्रिशियन के पास. और पीडियाट्रिशियन क्या होता ना, या तो दे वर स्केर्ड टू टेल द पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स वुड टेक इट वेरी नॉट वेरी nicely at that point of time because it was a very disheartening thing. But most of the normal physician would tell us ये वो हो सकता है थोड़ा लेट बोलने वाला बच्चा हो या थोड़ा कम बोलने वाला बच्चा हो, थोड़ा या फर्स्ट चाइल्ड है तो थोड़ा ज्यादातर फर्स्ट चाइल्ड लेट बोलता है. तो ऐसे मतलब like this today when you go to a doctor like this they will be able to tell you it looks as if he has autism and take him to NIMHANS or a proper doctor. Today it is different. It was not like that.
97, my son was diagnosed with Gillies-Dila-Tourette syndrome in Command Hospital, Calcutta. After I was there for 17 days in the hospital, doing Bera test, doing all hearing tests, doing all kind of tests, they were still able to tell us that he has Gillies-Dila-Tourette syndrome because he was making tick behavior. जबकि अगर वो उस समय 3 साल का था, अगर उस समय मुझे पता होता ऑटिज्म के बारे में जो आज मुझे मालूम है, today my son would have been so much better. He is now 31-year-old. Over the years after my second child was born, because he had a role model at home and he started learning from him, that my son is so much easier to manage. But I think he would have been so much better if the doctors would have guided me for early intervention at that point of time. So what I'm trying to tell you is 2006 क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि तब जब डॉक्टर ने बोला कि ये शायद गिलीज-डीला-टोरेट सिंड्रोम है, my own brother-in-law is a pediatrician and he said लगता है इसको ऑटिज्म है. पीडियाट्रिशियन था, उन्होंने बोला लगता है इसको ऑटिज्म है, एक बार दिखाओ एक प्रॉपर डॉक्टर के. So some doctor came from US, a friend of mine said एनुजीक को दिखाओ. हम लोग पूरा बिना गुड़ी से ड्राइव करके हम गए बुकारो सिटी. वहाँ वो आया हुआ था अपने रिलेटिव से मिलने. उसने भी चेक वेक किया ऑन ग्राउंड, बट नो क्लियर कट रोड मैप, नो क्लियर कट गाइडेंस टू पेरेंट्स कि आप ये करो स्टेप. चाहे जो भी हो, आज के डेट पे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मेरे पास अगर कोई बच्चा लेकर आएगा और उसको ऑटिज्म होगा, वो 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का भी होगा, within 5 minutes I'll be able to at least point out, even if I'm not a doctor, because social communication is not there. बच्चे से मैं जब ऐसे बात करूंगी वो मेरी तरफ देखेगा नहीं. बच्चे को जब मैं, तो ये सब बेसिक थिंग्स अभी हम लोग सबको मालूम है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा we were worried कि हमारे बच्चे का क्या होगा, because हम ही as parents didn't know. 97 I'm telling you, when the doctors told me that ऐसे है, syndrome है, ऐसे disability हो सकता है, I had never heard of the term autism. I'm an educated person. That time also I had finished my MPhil, I was teaching in Delhi University, but I had not heard the term autism. So, Being in Delhi. Okay, Delhi is the hub where autism? Where? Yeah. In the Delhi University, what do you know about autism? Who talks about autism? Nobody talks about. So there, Delhi University, you talk about thinkers. You talk about all kind of studies and historical things and everything. The present government and all that legal thing. But Delhi University doesn't talk about disability, no? There was a department of psychology there, but I don't think that there was too much, and philosophy, I guess. Yeah, I wasn't. No, I was doing political science. Political sciences. So which college, if I may ask? Kirarimal College. I was in the Chatma Delhi University. I was in the Fiji Women's Hostel. By any chance, were you in the theatre? No, I wanted to be, but I don't have a look anyway. So yeah, I am very, kind of. But that's because I'm Ruby. But yeah, my son is now 31, and he was the first reason why I came into autism media. And when I started, I was going through depression at that point of time in 2006. So 2006 में जब हम लोगों ने Autism Society of India किया, and I was just the पीछे, tail, पूंछ. बाकी जैसे लोग थे, Mrs. Matai, JP Gadkari, Mrs. K from Spastic Society, Jai Shri, Suchi, Mrs. Nalini, Dr. Nalini Menon from Spastic Society. These were the ones who Salim Ahmed, all these people came together, called us. That time also very handful of people wanted to work. And we thought to address this shortfall of anything to do with autism, we need to have an organization. And that's why we started organizing with just 51 people to start with Autism Society of India. And then the first conference was called by Autism Society of India. Although we did not have much fun, we ran around sharing resources, partnering with people. That was in 2011 was the first conference. Dr. Ashok was instrumental in calling all the research specialists and the doctors. And that time, again, as I said, I'm very new. I've learned under the
tutelage of all these people. But as a mother, my, push was that the society should recognize my child's needs. The society must respect my needs and my child's need. Child may be disabled, but I, as a parent, is 200 times disabled. I've been saying this. As a mother, I had to leave a career. I had to leave all my dreams. I had to, set aside my personal hobbies, my choice. I had to focus on my child's need. Who talks about the carers? So now autism has come center stage. I am also now putting more of my time on carers world. Because carers world is another world we have to really unveil, find out. What is a carer's world, if you can explain? Carers world is like, I'm a carer. Like you have somebody sick in terminal cancer at home. There is nobody, the mother हो, चाहे father हो, चाहे सास ससुर हो, कोई उसका देखभाल करने के लिए आप पूरा टाइम नहीं दे सकता. Because care करना is a very intensive work. Being a carer is something which none of us can do 24/7. But a mother of an autistic child, a father of an autistic child, at least mother is 24/7 a carer. और कैरर का लाइफ क्या होता है कि उसे जरा भी टाइम नहीं होता है कि खाना खा सके. उसका पहला फोकस होता है जो जिसके लिए मैं हूँ, जिसके चारों तरफ मेरा लाइफ घूमता है, उसका पहला. वो रोया तो हम रोए, वो उठा तो हम उठे, वो बैठेगा तो हम शायद बैठ पाए. तो ये हालत होता है ऑटिज्म के मदर्स का. प्लस उसके अलावा भी कैरर का लाइफ क्या होता है कि अगर घर में कोई टर्मिनल पेशेंट है, उसका फ्रस्ट्रेशन सारा कैरर के ऊपर निकलता है. यहाँ ऑटिज्म वाला भी बच्चा जो है, वो 3 साल का बच्चा हो तो भी माँ का बाल खींचता है, 20 साल का बच्चा हो तो भी माँ ही को मारता है या माँ ही को काटता है. तो अगेन मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे किसी का सिंपैथी चाहिए, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मेरा बच्चा 16 साल का हुआ और हार्मोनल चेंजेस एक अलग एरिया है ऑटिज्म के लिए, जिसमें कि क्या होता है कि ऑटिज्म के बच्चों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बढ़ जाती है और उस समय उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, ज़्यादा एग्रेशन होता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं. और एक सबसे बड़ी बात है कि उस समय अगर उनका फोकस नहीं डाइवर्ट करोगे पेरेंट्स से, उनको पेरेंट्स से थोड़ा अलग नहीं रखोगे, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स के ऊपर निकल. व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? तो दैट इज व्हाई यू नीड टू. तो कैरर्स को तो यार प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो बच्चों को बाहर भेजो ना. बच्चों को कहाँ बाहर भेजें? स्पेशल नीड सेंटर्स में भेजो. अल्फा इज अ स्पेशल नीड सेंटर वेयर वी ओनली टेक चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 10. Not before that. Because see, again, autism is a spectrum, right? तो जो बच्चा उसका अगर नीड को आप ऐसे डिवाइड कर लो कि 20 ईयर से 10 ईयर से पहले जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है ना, 3 मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल एंड हायर स्कूल. Yes. हमको भी ऑटिज्म के लिए भी वैसे ही सोचना है. जरूरी नहीं है कि उनके हिसाब से हो, लेकिन Is there a structure like that in India? No, that is what we have to do. We have to structure it. What we have to do now is that 0 to 9 का जैसे है, 0 to 9 अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट. अर्ली इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपी, जितना थेरेपी है सब देना है. और 9 के बाद आपको उसके बिहेवियर मैनेजमेंट पे बहुत काम करना है. जो आपने अर्ली इंटरवेंशन में किया उसके हिसाब से ये बच्चा उतना ही लेवल हायर रहेगा. अगर उसको स्पीच थेरेपी दिया तो हो सकता है उसका स्पीच आ जाए. तो मैम एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टिपिकल टाइम व्हेन द स्पीच के ऊपर, व्हाट इज द एज, एक एज रेंज होगा ना कि इस वाले टाइम से लेके इस टाइम तक अगर स्पीच पे काम कर लिया देन बच्चा निकल जाएगा. एंड व्हाट इफ, तो दिस इज 2 क्वेश्चन. ओके, वन इज व्हाट इज द टाइम व्हेन वी कैन वर्क ऑन द स्पीच, एंड व्हाट इफ वी मिस द बस, लेट्स से वो निकल गया हमारा, व्हाट कैन द पेरेंट डू देन? ओके, तो जो स्पीच का जो टाइम है, मैं समझती हूँ एक तो आप सिखाना ऑटिज्म वाले बच्चों को लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन स्पीच थेरेपी पर से जो कि बहुत टेक्निकल इशू है, क्लिनिकल होता है, वहाँ पे स्पीच थेरेपी का मशीन्स लेके करते हैं, उसको बच्चों को 0 to 9-10 ईयर्स में जरूर होना चाहिए. 10 ईयर्स के बाद अगेन वही होता है ना, चिकना गड़ा, जितना भी करो तो वो ऑलरेडी मिस हो गया है, वो आपका बस मिस हो चुका है. तब आप कम्युनिकेशन पे काम करो, तो आपकी स्पीच तय करिए, लेकिन आप विजुअल कार्ड्स पे काम करें, टेक्स्ट पे काम करो, उसके साइन लैंग्वेज पे काम करो, हाँ प्रैक्टिकल काम करो, हैंड्स ऑन करो. भैया तुम देखो इधर उंगली करो, चलो पॉइंटिंग कम होती है, बेटा
वो पॉइंटिंग करो, उसको जितना हो सके प्रैक्टिकली सिखाना Point है it so. आपको उसके बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्पीच खत्म हो चुका है। लेकिन अगर अर्ली इंटरवेंशन स्पीच का हुआ, और चांसेस ये है कि वो रेसिप्रोकल और रिसेप्टिव, जो मैं ये दो चीज इसलिए भी बोलना चाहती हूँ, रेसिप्रोकल एंड रिसेप्टिव पहले आता है कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने वो क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा। अगर मेरी नॉलेज, मेरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया आपका बोलना, बहुत शोर हो रहा है, मैं सारे सिचुएशंस बता रही हूँ, इंग्लिश नहीं जान, लैंग्वेज नहीं जानती, हो सकता है लैंग्वेज बच्चा मिस किया है, नहीं जानता है, कन्नड़ा में कोई बोल रहा है नहीं जानता, लैंग्वेज नहीं जानती हूँ, शोर बहुत हो रहा है, मैंने सुना नहीं ठीक से, और या मैंने समझा नहीं, मेरे को आता ही नहीं, मेरे पास डिक्शनरी ही नहीं है, आपने इंग्लिश में बोला, तो उसमें क्या होता है, मेरी रिसेप्टिव हुई नहीं। आपने क्या पूछा, मैं आपकी आंखों में डालते रहूंगी, मैं स्टिमिंग करती रहूंगी, मैं जंप करती रहूंगी, आप मेरे को समझ में नहीं आया। अगर मैं बूढ़ी भी होती और मेरे को कुछ भी समझ में आता, मेरे को होता या भाई ये कुछ बोल रहा है, मैं कुछ तो सर लाऊंगी कि वो क्या बोला बेटा, फिर से बोलो, ऐसे पूछ सकती। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है कि इनको अगर रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कॉम्प्रिहेंशन की कमी है, तो वो रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं, जब रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं है तो रेसिप्रोकल कहाँ से होगा, समझ गए। तो मेरा अगर ये फर्स्ट स्टेप मिसिंग है तो रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम है। लेकिन हो सकता है कि मेरी फर्स्ट स्टेप मेरे को समझ में आ गया आपने क्या पूछा, मगर मेरे में वर्बल नहीं, मैं बोल नहीं पा रही, मेरे में साउंड नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे इसका जवाब क्या देना है, मैंने वो जवाब नहीं अपने ब्रेन में बनाया, मैं आपको रेसिप्रोकल भी नहीं कर सकती। तो ये रिसेप्टिव और रेसिप्रोकल पे काम हर पेरेंट को करना है। और बार बार हम लोग ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए बोलते हैं कि आप छोटे छोटे टर्म्स, जैसे एक आप छोटे बच्चे को सिखाते हो, वैसे आप एक एक दो दो वर्ड का पहले सिखाओ, उसके बाद उसकी वोकैबुलरी बढ़ाइए। अगेन टू सिंप्लीफाई, पर अगर ये पॉडकास्ट पेरेंट्स देख रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे के ब्रेन में डिक्शनरी बनाना बहुत जरूरी। आप डिक्शनरी पे फोकस करो। बार बार मैं हमारे समाज में भी बोलते हैं कि बच्चे जी, जो बच्चा होता है उसको तो आप जितने लैंग्वेज दो वो सीख लेता है ना, बाद में चल के प्रॉब्लम आती है। अगर ये एक बच्चा घर में तमिल सीखता है, तमिल सुनता है तो तमिल सीख लेता है, स्कूल में इंग्लिश सीख लेता है, दोस्तों के साथ हिंदी सीख लेता है, कि कोई और फ्रेंड अगर उसका कन्नड़ बोलता है तो कन्नड़ा भी सीख लेता है, अगर कोई फ्रेंच वाला फ्रेंड है तो फ्रेंच भी सीख लेगा। तो बच्चे की जो ability to grasp is much higher, so we need to focus there. But again, coming back to the practical side, autism is not that they don't have intelligence, but the processing is the problem. Information reception है, आँख कान मुंह सबका इंफॉर्मेशन रिसेप्शन होता है बच्चे के बॉडी। दे अंडरस्टैंड द क्यू, सब समझ आता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को गुस्सा आ रहा है, तुमको समझ आता है गुस्सा आ रहा है? नहीं है, अगर इमोशंस को नहीं, इमोशन नहीं पता, सो हाउ डू दे रिसीव, हाउ डू दे कम्युनिकेट? सो फॉर एग्जांपल हो सकता है एज दे ग्रो ओल्डर, बीइंग स्ट्रीट स्मार्टनेस तो सब में होता है ना, एज दे ग्रो ओल्डर वो माँ बाप का आंख के डर से पता चल जाता है। कैसे मैं सोचती हूँ ऑटिज्म वाले बच्चे में देखती हूँ वो पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है, अच्छा मदर के साथ काय टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, बिकॉज द मदर इज always available. Yeah. And those who are available, it's very easy to exploit them. Access, yes, है ना? easy access, and also क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉट जो होता But है। why do they do this? मतलब ये इसके पीछे का क्या है? Because देखो, अगर if you know already this pattern, man, because the people who are watching this, they understand कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके एक पीछे? बात बताओ, not because they hate the mother, they love her so much. Say for example, आप ये dangerous इश्क नहीं है? डेंजरस इश्क है, पर मैं एक बात बताऊं, तुम गए हो कहीं बाहर जा रहे हो, किसी रिलेटिव के घर गए अपने फैमिली के साथ, हाँ, पापा माँ भाई बहन सब गए, और तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगा वहाँ, तुम गुस्सा किस पे उतारते हो? Obviously जिसने भी लेके गया उसके उसी पे गुस्सा निकालेंगे, या जिससे तुम क्लोज हो उस पे निकालोगे, या उसके ऊपर गुस्सा नहीं फ्रस्ट्रेशन तो बताओगे? because you know that person so well, close हो, इसलिए अपना पूरा यही आंसर है आपका। अभी क्या होता है ना, ऑटिज्म वाले बच्चे दूसरे को बहुत कम डैमेज करते हैं, अपने सेल्फ को पहले डैमेज करते हैं, बाद में सबसे क्लोजेस्ट जो होता है वो, और की इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑटिज्म,
My mother is the extension of myself. After that only teacher. तो After that only caretaker. नहीं. और दूसरा एक बात और है. हाँ बोलो. तो carers वाला जो part आ रहा था, where I want to preserve the sanity of the carers, because till the time the sanity of the carers is not preserved, तब तक वो ecosystem नहीं बन पाएगा. हाँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि one part is that आपने बताया कि come to Alpha 10 years and above. तो what kind of work does Alpha do? क्या करती है Alpha? Alpha only works with teenagers and adults, and it works only on behavior management of children. We are, if some people come here and say मेरा बच्चा बड़ा अच्छा गाना गाता है, तो मैं क्या करूं? मैं सीधा पूछती हूँ, तो मैं क्या करूं? उसको मैं सिंगर किशोर कुमार तो बना नहीं सकती, उसको स्टूडियो में ले नहीं जा सकती, नहीं कर सकती ना प्रैक्टिकली. मैं उसका बिहेवियर मैनेजमेंट पे करूंगी. वो बिहेवियर ये है कि आपको हर्ट कर रहा है घर में, बाकी फैमिली मेंबर्स को तकलीफ हो रही है उसकी वजह से, उस पे मैं काम करूंगी. मैं सब एरियाज पे काम नहीं कर सकती. मैं यहाँ भी बीच में छोड़ चुकी हूँ एक जगह, जब मैं बोल रही थी कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हर एरिया का एक अलग अलग एक्सपर्ट्स होना चाहिए. अभी कोई अर्ली इंटरवेंशन भी दे रहा है तो बिहेवियर भी मैनेजमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता. वी नीड टू फोकस, देन ओनली गुड क्वालिटी सर्विसेज विल कम अप. नाउ आई फोकस ओनली ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट. आई डू नॉट फोकस ऑन वोकेशनल. Vocational is a byproduct of my behavior management. Do you have another organization which can work on the vocation and find the best? कुछ कर रहा हो उसके? इतना तक तो आपने या वन लाइफ टाइम में मैं एक कर चुकी हूँ, और एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट कर रही हूँ. What after me? What after me? Right? क्या होगा मेरा बच्चा जब मैं नहीं रहूंगी? मैं इतना प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगी, मेरा एक ही बच्चा है, कौन लेके जाएगा मेरा बच्चा को? कोई मेरा देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे बच्चे की 2 ही रिक्वायरमेंट है. एक उसको अच्छा खाना, एक उसको कंफर्टेबल लिविंग. ये 2 रिक्वायरमेंट उसका कोई प्रोवाइड कर सकता है. इतना भी पैसा मैं छोड़ के जाऊँ, कोई करने वाला होना चाहिए. एंड मेरे को एक सेकेंडरी केयर गिवर टीम चाहिए. मैं प्राइमरी केयर गिवर, मैं आई वांट टू टेक अ बैक सीट. So Alpha is all about that. Alpha is also about. Is there a full form to Alpha? Assisted living for autistic adults. Wow, बहुत सही है. 2009 में मैंने शुरू किया. Alpha is a splinter of Autism Society of India. मतलब जब Autism Society of India जब हम लोगों ने फॉर्म किया, और मेरा फ्रस्ट्रेशन जब Autism Society पे निकल रहा था कि भाई मेरा बच्चा तो 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, उसके लिए उसको तो स्पेशल स्कूल से भी निकाल के घर में भेज दिया क्योंकि वो बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसको वो स्पेशल स्कूल जो था वो सभी डिसेबिलिटी को हैंडल करता था. अभी मेरा बच्चा इतना क्यूट था, उसको एक हियरिंग वाला, इम्पेयर्ड वाला, उसको पिंच कर लेगा, उसको वो ये बोल नहीं पा रहा है, ये जंप कर रहा है तो उसको प्यार हग कर लेगा. एंड ही डजंट लाइक एनीबॉडी टू टच. अब वो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, वो घर में बैठ गया. तो मेरा फ्रस्ट्रेशन ये था कि भाई ASI फॉर्म करने से क्या हुआ, मेरा जो डिफिकल्टी है वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहा. वो घर में बैठा हुआ, उसकी बिहेवियर बढ़ती गई और वो रोना चिल्लाना, जंप करना, मारना पीटना शुरू हो गया. तो उसको हम लोग चेयर में बांध के रखते थे. क्या करें, मार खाएं, दांत काट लेता था. ये 16-17 साल का, मैं वही बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स रोड है. नॉट बिकॉज मेरा बेटा मुझे प्यार नहीं करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरा बेटा को नहीं पता है कि उसका बॉडी 6 फीट का हो गया. वो तो अपने आप को छोटा बच्चा सोचता है. वो अगर मुझे किक करेगा, सोते सोते भी किक करेगा, तो उसके पैर से मेरा पैर हड्डी टूट गया. तो मेरा मतलब इतना एनर्जी होता है 16 साल के बच्चे में. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल बिकॉज माई चाइल्ड डिड नॉट गेट द थेरेपी, द रिक्वायर्ड थेरेपी एट द राइट टाइम. नाउ माई वरी वॉज, वो तो निकल गया, अब आगे का सोचूं. आगे भी क्या मैं ये भुगतना? क्या नहीं, कोई नहीं हेल्प कर सकता जब बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाता है. ओनली अल्फा कैन हेल्प यू. मैं सबसे डिफिकल्ट बच्चे, ऐसे बच्चों को लेती हूँ जिसके पेरेंट्स हाथ पैर बांध कर लेकर आते हैं हमारे पास, क्योंकि गाड़ी को डैमेज कर देता बच्चा, या किसी को ड्राइव नहीं करने देता, दांत काट लेता, उसके हाथ पैर बांध के मैं वीडियो दिखा सकती हूँ. एंड विद द पेरेंट्स परमिशन. इकलौता बेटा, जान से ज्यादा प्यारा, पर बिहेवियर मैनेजमेंट, इतना हाई फंक्शनिंग लड़का, एंड उसको बोर्ड एग्जाम दिलाने में and then they could not manage him. Then they had to come to Alpha. Today he is in independent living setup. Parents आराम से, आज parents, father's mother is having cancer. He gone to Odisha looking after his mother. Who will give that? जब मेरे पास आए थे 2-3 साल पहले, 2023 में फर्स्ट टाइम February में जब आए थे, उस टाइम they were literally in tears. Today they are in smiles. Alpha is all about that.
I want to give them hope. You can see me, I look so happy, no? And I look so. I wanted to ask, where are you getting this energy, all this energy from? I'm Is 60, man. is it I'm very happy doing what I'm doing. very, very purposeful and full of life? Huh? Yeah. I mean, I got educated to be giving lectures to students on political science and on Indian Constitution. I'm happier to giving lecture on autism today. वो कोई और कर सकता है. There are many people who are trained for this. There is not many mothers who are trained to do that. So my whole idea is to take out mothers from डंडा लगा के उनको डिप्रेशन से बाहर निकालना and empower them, bring them together. एंड मेरा अल्फा का एक और ड्रीम है कि जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट, अभी एक प्रोजेक्ट बन रहा है रोड बल्लभपुर में, द स्किल डेवलपमेंट सेंटर इज अबाउट 14,000 स्क्वायर फीट एंड इट्स कम अप नाउ 26 वी आर हैविंग द कर्टन रेजर. मेरा एक और जो ड्रीम है अभी नेक्स्ट स्टेप में वो ये है कि मैं सभी पेरेंट्स जो मेरे साथ हैं, कम से कम दिस प्राइमरी केयर गिवर को हमें एक subsidize tickets देना चाहते. We'll all go on a cruise, on a long, at least 15 days to 1 month cruise. Out of India? Out of India हो, inside subcontinent हो, कहीं भी. मेरा डिपेंड करता है पैसा कितना है. I want to have a corporate give us that tickets for those 30, 50, whatever parents ki here is the one couple can go on this. I believe Shah Rukh Khan has a cruise. I saw the cruise in where did I go? I was in some place now just recently. उडुपी. उडुपी के पास उसका शाहरुख खान का क्रूज वहाँ पे पार्क था. मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि 50 पेरेंट्स के लिए हमको वो पास दे देना 1 महीना के लिए. हमको one couple can go free or some nominal rate because we can't afford it. I think just relaxing and watching the sky. शाहरुख खान बन गए. मैं शाहरुख खान नहीं बोल रही हूँ. नहीं, मैं शाहरुख खान नहीं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ आप शाहरुख खान बन गए ये वाला. नहीं, मैं ये कर रही हूँ कि मैं स्काई देखते हुए एक शाम गुजर जाए with some friends around and just doing nothing. I wish I can do that. You have a good circle of friends? I used to have a very good circle of friends. My school friends, my college friends, my university friends, my youth exchange friends. I have a very good. मेरा NGO जो है ना, मेरे NGO का ऐसा is not got no fund. आज के डेट पे मैं एक 12 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रही हूँ. All because of my friends and friends. The well-wisher team. It's 12 crore. The land itself is 2 crore. It's all got expensive, but I'm also not compromising on the construction. It is eco-friendly, which is more expensive. It is low maintenance, which is more expensive. It is full water harvesting, electrical harvesting, everything. तो मैं ये बोल रही हूँ कि I always say कि why autism? Autism is a disability. इसलिए उनको एक झोपड़ी में रहना चाहिए या एक छोटा शैक में होना चाहिए. No, let them have the best of the world and let the primary caregiver at least some point of time one such space where they can enjoy their life. Most of my parents can enjoy and you can talk to any one of them. They are happy. सिर्फ एक बात बोलेंगे, रूबी मैडम किसी का बात नहीं सुनती. नहीं सुनती हूँ because I am the driver of the bus and I can't. The ship. I can't be listening to everybody कि इधर जाओ इधर जाओ. I have to drive and I know the goal. After I reach the goal, किसी को जाना है बस चलाने आता है ले जा. लेकिन जब तक गोल नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं किसी का नहीं सुनूंगी. So that's Ruby. नहीं अच्छा नहीं चेंज करना. You should not change. जब तो पेरेंट्स है ना 10 लोगों के 10 रिक्वायरमेंट, 10 लोगों के 10 प्रॉब्लम, 10 लोगों का 10 देखने का तरीका. This question I'm very inquisitive. पहले I mean were you a person who used to say yes every time? No. You were a person who never used to say yes. You were always very clear about your goals. Yeah, absolutely. Okay. Yeah, what do you think? What do you think? A person having. I've always had my own opinion. Okay. Because I'll tell you something. A lot of parents are in that space where they cannot say no because they say yes. Do you also change the mindset or mindset training for the parents where they learn to value themselves because of this condition? Number one, the child gets violent with them. All the family members are picking on that person.
And somewhere down the line, you are empowering that person who is impacted the most, right? So do you also work on the mindset? And if yes, do you do something online? Because I think that ASI is having a pan India presence. Right? Pan India Pride. Huh? Two things that you asked me, I am a failure on that. No, I am not very electronic savvy person, not very much. सोशल मीडिया किसी तरह चला लेती हूँ, तो मुझे सीखने का मन भी नहीं है. मैं इसके बारे में एक स्टोरी बता सकती हूँ, लेकिन आई वोंट टेक योर टाइम. बट मैं, और दूसरा तुमने पूछा कि पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करते हो. नहीं, मैं पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करने का मेरा कैपेसिटी नहीं. आई एम टू स्मॉल, बट डंडा बहुत लगाती. तो पेरेंट्स का माइंडसेट उससे चेंज होता है तो होता है. डंडा करो, तुम्हारा काम है. गॉड इज गिवन यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. रोके करो या हंस के करो, करना तो है. तुम, एक दो पेरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने, मेरे सेंटर में एक मदर आई थी, शी वॉज अ डिवोर्सी, और अगेन आई एम अ फेलियर ऑन दैट ग्राउंड, बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ ना. मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं करने आई हूँ, मगर मैं बता सकती हूँ कि आपको जो मैंने किया वो एक सक्सेस स्टोरी मुझे लगता है. आप भी करो, ट्राई करो. डिवोर्सी थी, ऑब्वियसली उसके रिसोर्स मेरे जैसी नहीं थी. मेरा हस्बैंड मेरा पीछे खड़ा था. माय हस्बैंड हैज बीन अ बिग सपोर्ट, एंड विदाउट हिम आई कुडंट हैव डन. उसके पास नहीं था. मुझे समझना चाहिए था, मगर मैं नहीं समझी. क्या करूं, मैं सब कुछ नहीं समझ सकती हूँ. वो, उसको मैंने बोला कि 15 दिन आप रहो. इस बच्चे को हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज उसने नहीं बताया था कि उसको फिट्स होता है, और वो इतना पतला बच्चा था, इतना कमजोर बच्चा था. उसी दिन वो नर्वसनेस से उसको फिट्स हो गया. हम डर गए, हमारे स्टाफ डर गए, समझ गए. तो हमने बोला 15 दिन रहिए, मैं एक्लेमेटाइज हो जाएगा, बच्चे का सारा रिक्वायरमेंट हमारी स्टाफ समझ जाएगी, फिर हम इसको ले लेंगे. शी सेड नो, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी लेफ्ट विथ हर मदर एंड विद द चाइल्ड. नाउ आफ्टर 1 month or so, her brother calls me, my sister has committed suicide. It's very sad. She in the morning got up, went to in Coimbatore, कोई लेक है वहां जाके, रिवर है या लेक कुछ है, वहां जाके वो डुबकी मार के मर गए. उसको स्विमिंग नहीं आता था, मर गई. तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को के साथ मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, जिसको कि फाइट करने में. तुम्हारा बैटल तो नहीं लड़ सकती ना, मैं अपना ही बैटल फाइट करूंगी. मेरे लाइफ में मेरे भगवान ने मुझे कुछ बैटल्स दिए हैं, और उस बैटल को मुझे या तो जीतना है या हारना है. लेकिन मैं उसको, आई एम नॉट द काइंड हु विल जस्ट गिव अप. इफ यू आर रेडी टू गिव अप, it's your life. If you giving up, I'm not going to waste my time on pulling you out. I can only give you the support. And nobody knows कि तुम डिप्रेशन में हो. Nobody, I mean, doctors probably कह सकते हैं. मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकूँ. मगर मुझे कहीं लगता है कि किसी को सपोर्ट चाहिए. They all reach out to me. And from there you direct to the doctor also. Yes. And the psychiatrist. मैं जितना हो सके मैं करती हूँ. मैं उनको निमांस ले जाती हूँ. मैं खुद भी कई बार पेरेंट्स के साथ गई हूँ जिसमें डिफिकल्ट बच्चा रहा है. मैं अपनी गाड़ी में बिठा के भी लेके जाती हूँ. मैं लोगों को कनेक्ट कराती हूँ. मैं नेशनल ट्रस्ट में भी लोगों को कनेक्ट कराती हूँ. मैं कभी भी सोचती हूँ कि ऑटिज्म से लेके कोई भी अगर मेरे पास आए और मैं उसका इतना भी तकलीफ दूर कर सकूंगी, तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ. ये मेरा नेचर है. पर डड्डा भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है कि, और मैं ये नहीं कि मैं अपनी सेल्फिश मोटिव से उसको डांट रही होती हूँ. मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है कि ये क्या कर रही है, ये क्यों नहीं यहाँ जा रही है, मैं इसलिए डांटती हूँ. वो फिर मेरे को पूछेंगे कि क्या कॉस्ट रहेगा, क्या ऑटिज्म ठीक हो जाएगा आपके सेंटर में जाने से. फिर मुझे गुस्सा आता है कि पढ़ती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है. ऑटिज्म ठीक हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं, तब डिसेबिलिटी नहीं था. अब उसमें क्या करो. लेकिन फिर मुझे समझना चाहिए, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है. मेरे सुबह से मुंह चलता रहता है, तो मैं थक भी जाती हूँ कभी कभी. पता नहीं, मुझे लगता नहीं, लेकिन थक जाती हूँ तो फिर मैं डंडा लगाती हूँ. 2 things. ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, हर पेरेंट को ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट में जाके डाउनलोड योर फॉर्म, call me on my number or send me a message or send me, easy to reach out, it's not difficult. Somebody will give you the number and send it to us, because all parents of autism child should be under the umbrella of Autism Society of India, because government needs data and government is not going to ask for data from him or from Alpha. It is only Autism Society of India, they will reach out to ask for the requisite data of autism children.
So it is your responsibility as parents. First, become a life member. Life member is only 2,000 rupees, not much. People who could not afford that also will try and raise the fund for them. But do fill up the form and call me and send it to me. One. Link is in the description. Yeah. And the second, you can give my number also or the Autism Society website and number. It's very important to get the data in India. The second thing is Alpha. Alpha is assisted living for autistic adults. And thank you for bringing it in because I don't like to market my NGO. I do all marketing for ASI, Autism Society. But Alpha, yes, I want to tell you, we are building up a larger campus project. Now, people who want to see, I'll be putting up on 26th, we are going to be doing a curtain raiser of the school building. It's going to have 3 buildings. The hostel will cater to about 35 to 40 children, and there will be a dining hall. It's on 3 acres of land in Dodballapur, about 40 kilometers from the Bangalore International Airport. Completely independent living setup of children with autism with secondary caregiver, not the primary caregiver, so that we make primary caregiver free. They can visit, they can stay on campus for 6 months. We'll have arrangement for that. Later on, it will take at least 1.5 to 2 years to get completed. Now we have only completed the ground floor of the school building, and we are doing a curtain raiser for people to see what is it going to be like. And again, we'll be taking about 15 to 20 new parents. They can reach out to me. Children above the age of 18 only will be Above the age of 18. 18. It's about adults. I see. It is not teenagers we take in the day school. Okay. We don't take them in the hostel. The hostel only adults. That is 18 and above. So that we don't want to get into POCSO Act and all that. I can't. Itna time bhi nahi hai. And in this short span of time, I want to totally close all loose ends about adult care. Because I have to work. After this, I have to work on geriatric care. Because 40-45 के जब बच्चे हो जाएंगे, पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाएंगे, तब उनको सारे हेल्थ इश्यूज होंगे. सो आई वांट टू फोकस ऑन द हेल्थ इश्यूज, केयर टेकिंग, जीरियाट्रिक केयर. उसके बाद अगर उसको किडनी फेलियर हो गया, कहाँ लेकर कौन, वो तो बोल भी नहीं पाता है. सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट ऑन द कैंपस. पेरेंट्स तो चले जाएंगे. हमारे पेरेंट्स जब हम 45-50 आते हैं तब तक तो हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं. ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी मैंने एक सेटअप रखा है कि पेरेंट्स कैन ग्रेजुअली ओल्ड एंड एंजॉय, एंड व्हेन दे लीव दिस वर्ल्ड उनकी आंखों में एक खुशी रहे, होप रहे. नहीं तो अभी जो कई पेरेंट्स पहले जो मरे हैं, जैसे वो मदर जिसकी बात कर रही है, वो तो आंखों में दर्द लेके गई होगी ना. मैं वो दर्द नहीं देखना चाहती. मैं चाहती हूँ कि वो पीसफुली मरे. हमारी एक पेरेंट मरी है अभी रिसेंटली. दोनों बेटा उसका ऑटिस्टिक है, मेरे सेंटर में है दोनों. और वो शी डाइड ऑफ कैंसर. शी डाइड विथ अ स्माइल ऑन हर फेस बिकॉज शी न्यू अल्फा विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड. आई विश सच अल्फा इज एवरीवेयर. आई कैन ओनली एक ही लाइफ में एक ही कर पाऊंगी. तो एक ही सेंटर खुला है यहाँ पे. क्या करूँ, इतना पैसा लगता है, पैसे नहीं है. एक रुपया जमा करते करते यहाँ तक खींच के लाई हूँ गाड़ी. पर एक मॉडल बना रही हूँ और एक hope create कर रही हूँ. That's it. I'm not saying I can solve everybody's problem, but yes, we have to constantly thinking about what next. और क्या करना है और क्या बाकी है. जैसे ये रिसर्च, ये सबको, ये थर्ड है और ये चलते रहना चाहिए. पर ये शुरुआत करने का तो हम लोग 2000 ये पहले करना था ना. 2011 में हमने शुरू किया. आज मैं रेजिडेंशियल की बात कर पा रही हूँ बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट हमने किए पहले. ऐसे रिसर्च, ऐसे सबको एक जगह नेटवर्किंग किया, हमने बुलाया, 100-200 लोगों को आके दिखाया, सोसाइटी को दिखाया कि हाँ इतने पेरेंट्स हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ही एक रूबी सिंह नहीं हूँ जो कि मदर हूँ. इतने और हैं, इतने और रिसर्च हो रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, सब एक सेंटर स्टेज पे ला के दिया. अब हम कौन सा और भी डिफिकल्टी एरियाज धीरे धीरे निकलेंगे, उस पर काम करना पड़ेगा. कोई करेगा, मैंने जो सोचा मैं उस पर कर. That's really nice. So those who are listening this entire podcast, do visit Autism Society of India. It is one of the oldest which has been in this space. And also for the parents who already are having children who are pre-teens and maybe teens, and the discussions which we had, जहाँ पर भी आपको कुछ भी conditions लग रहा है, you can always reach out to ASI and also Alpha. Alpha is assisted living for autistic adults. So I would request you all to understand what exactly it is, so that you
can for yourself Connect. can connect and and ensure that you have a nice and happy life while your child is on the spectrum. So once again, thank you so much.